Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on topic of derivatives and major topic is strategies of options. So let us see data given in this scenario. So we are given JP Morgan Finance Limited is a financial services company which recommends the options strategies to make arbitrage gains and to hedge the investment portfolio to its clients who are investors. The following information is available for some of the strategies of options recommended by JP Morgan Limited during current year. So number one is options on shares of VCC Limited. So in this case, it is given the equity share of VCC Limited is quoted at rupees 210. A 3-month call option is available at a premium of rupees 6 per share, and a 3-month put option is available at a premium of rupees 5 per share. The strike price in both cases is rupees 220, and the share price per share on the exercise day may be rupees 200, 220 or rupees 250 per share. Secondly, given option on shares of MJ Limited. The equity share of MJ Limited is quoted at NSE, and the 3-month call option is available at a price of rupees 30, and 3-month put option is available at a price of rupees 5. So price of option means option premium which buyer of option has to pay. And if both these options are available, we can exercise price of rupees 408, and risk-free interest rate is 8% per annum. So now different MCQs are given. Number one, they are asking, determine the net payoff to the investor who has bought both call and put option on shares of VCC Limited. तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज पे ऑफ टू द इन्वेस्टर हु हैज परचेज बोथ कॉल एंड पुट एंड दिस इज ऑन शेयर ऑफ VCC लिमिटेड इफ प्राइस ऑफ शेयर ऑन एक्सपायरी इज अवर रुपीज 200. तो जिस डेट को आपका ऑप्शन मेच्योर होगा ऑन एक्सपायरी देन प्राइस ऑफ शेयर इज 200. तो सिमिलरली सेकंड MCQ है, उसमें आपको डिटरमिन करना है पे ऑफ टू इन्वेस्टर who has purchased both call and put if price becomes 220. थर्ड MCQ में है if price becomes 250. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले डाटा बनाते हैं. तो दिस इज अवर शेयर ऑफ VCC लिमिटेड. फॉर MCQ नंबर 1, so we are given data on share of VCC limited. So in this case data given is this. So we are given that our current price of share is given. This is 210. This is called spot price, जिसको हम S0 से शो करते हैं. Spot price of this is रुपीज 210. फिर आपको मेंशन किया है that 3 months कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 6. फिर आपके पास 3 months की कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम हम आपको दिया है प्रीमियम ऑफ कॉल जिस इज 6 पर शेयर. Similarly, we have a 3-month put option. तो इसका भी प्रीमियम आपको मेंशन किया है. 3-month put is available at a premium of रुपीज 5. तो इट मीन्स यदि आप दोनों ऑप्शन बाय करते हैं तो आपकी जो टोटल प्रीमियम की कॉस्ट है सो दिस विल बी टोटल प्रीमियम कॉस्ट फॉर बोथ ऑप्शन दिस इज रुपीज 11. अमाउंट आपके रुपीज में है. And it is given the strike price in both cases is 220. So exercise price, this is called the strike price of a call is equal to exercise price of a put, and this is given rupees 220. तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है जब आप कॉल एंड पुट दोनों बाय करते हैं एट सेम एक्सरसाइज प्राइस. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटल. दिस इज नेम ऑफ स्ट्रैटेजी. अब देखते हैं नंबर 1 MCQ में अब आपको मेंशन किया है डिटरमिन करना है अपने नेट पे ऑफ टू इन्वेस्टर हु हैज बोथ कॉल एंड पुट एंड इफ प्राइस ऑफ शेयर ऑन एक्सरसाइज डेट इज रुपीज 200. अब आपका जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ 3 months ऑन दैट डेट सपोर्ट प्राइस इज गिवन. तो फर्स्ट कैसे ले रहे हैं MCQ 1 में. सो इफ सपोर्ट प्राइस ऑफ शेयर and this is after 3 months which is on expiry date. So this is given rupees 200. तो आप चेक कीजिए पहले what will happen.
तो कॉलिंग पुट नंबर 1 केस, तो यदि आपका प्राइस एस टी अब है 200 एंड दिस इज लेस देन अवर एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, तो उस केस में आपकी जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, कॉल रिजेक्टेड, और जो पुट है आपकी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स व्हाट विल बी पे ऑफ, तो कॉल तो रिजेक्ट हो गई है तो इट मीन्स कॉल का पे ऑफ 0 बन जाएगा। पुट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, पुट में आपको राइट मिल गया है सेल करने का एट एक्सरसाइज प्राइस, इट मीन वी सेल एट 220, और आप स्पॉट जो प्राइस है मार्केट से बाई कीजिए 200, तो इट मीन्स यूर प्रॉफिट इज 20 एंड व्हाट विल बी नेट पे ऑफ, दिस इज योर प्रॉफिट 20 और माइनस प्रीमियम आपको दोनों का पे करना पड़ेगा, तो आंसर इज ₹9, so this will be profit in this case. So now you can see which option is correct. Answer is option number C is correct. Then we have a second MCQ. Again they are asking determining a net payoff to investor who has bought both call and put options on share of VCC Limited if price of share on expiry date is ₹220। अब आपकी जब एक्सपायरी होगी उसमें आपको ये मेंशन किया है सेकंड MCQ में that our support price on exercise date so is equal to ₹220। तो आप देखेंगे दोनों ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस भी 220 है एंड दिस मीन दिस इज अवर एस टी जिसको कहते हैं स्पॉट प्राइस आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। जब दोनों ही सेम है वैल्यू टू एक्सेप्ट टू रिजेक्ट कॉल और पुट, तो आपका जो पे ऑफ है दैट विल बी 0। इट मीन्स what is the payoff of call, this is 0, so what will be net payoff, कॉल रिपोर्ट का पे ऑफ 0 है बट प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 11, इट मीन नेट पे ऑफ इज ₹11, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। So next we have third MCQ. So again we have to determine net payoff to the investor who has bought both call and put options on shares of VCC Limited if price of share on exercise date is ₹250। अब आपका जो प्राइस है शेयर का दिस इज 250 सपोर्ट प्राइस आफ्टर 3 मंथ दिस इज गिवन। तो लेट अस सी थर्ड MCQ। तो इन दिस केस सपोर्ट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स विच इज ST, so this is 250 and this is more than exercise price of 220। तो उस केस में अब आपकी जो कॉल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, पुट रिजेक्ट हो जाएगी। सो इन दिस केस कॉल इज एक्सेप्टेड एंड पुट इज रिजेक्टेड। सो व्हाट विल बी नेट पे ऑफ, तो कॉल में देखो कितना पे ऑफ होगा, कॉल में आपको राइट मिलता है बाई करने का, 220 पर आप बाई कीजिए और 250 पर आप सेल कीजिए। तो अगर नेट पे ऑफ वी सेल इन मार्केट एट 250 बाय एट 220 माइनस प्रीमियम आपको पे करना है विच वाज 11 रुपीज। सो अवर पे ऑफ इज कमिंग, सो दिस वन इज अवर सो 30 माइनस 11 so ₹90। now you can see which option is correct, answer is option A। so next we have fourth MCQ. So they are asking determine the price range at which call and put options on shares of VCC Limited may be gainfully exercised। आपको डिटरमिन करनी है व्हाट शुड बी द प्राइस रेंज सो दैट वी गेट प्रॉफिट इन कॉल एंड पुट ऑप्शन से। तो आप देखिए आपको मेंशन किया है प्राइस रेंज आपको डिटरमिन करनी है एंड वी नो दैट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन सो अवर प्रॉफिट राइजेज और कॉल इज एक्सेप्टेड व्हेन अवर स्पॉट प्राइस is more than exercise price, but in case of put option so gain is achieved or we can say that put is accepted when our spot price is less than exercise price। तो इट मीन्स अब स्पॉट प्राइस आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट शुड बी दिस सो दैट देयर इज प्रॉफिट इन कॉल ऑप्शन। तो आपका इको फार्मूला बन जाएगा ST जो है आपका, तो इट शुड बी मोर देन E, इट मीन्स पे ऑफ बन जाएगा जब आपका ग्रेटर होगा तो पे ऑफ होगा। अब अपने दोनों ऑप्शन बाई किए हैं तो इट मीन्स ST पर आप सेल करेंगे, E पर आप बाई करेंगे, क्योंकि जब प्राइस आपका ग्रेटर है तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। E है आपका 220 और दोनों का प्रीमियम आपको पे करना है एंड दिस शुड बी पे ऑफ शुड बी मोर देन 0 और इक्वल टू 0 वी कैन से। तो इट मीन्स उस केस में आपका जो ST है ग्रेटर देन और इक्वल टू सो 231।
so only can you make a profit. But यदि आपका प्राइस लेस है, इट मीन्स व्हाट विल बी नाउ पे ऑफ इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, तो ई पर आपको राइट मिल जाएगा सेल करने का और मार्केट से बाई करेंगे. इट मीन पे ऑफ है ई माइनस एस पी माइनस प्रीमियम, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ई है आपके पास 220 को आपको डिटरमिन करना है. 220 माइनस एस पी माइनस 11, एस पी विल गो ऑन दिस साइड. 220 minus 11, this is our, so 209. It means now ST should be less than or equal to 209. तो सेकंड प्राइस आ रहा है आपका लेस देन और इक्वल टू 209. तो इट मीन्स अब आपकी रेंज जो बनी है प्राइस की, यू कैन गेट प्रॉफिट इफ प्राइस इज लेस देन 209 और प्राइस इज ग्रेटर देन 231. तो ये आपकी प्राइस रेंज बन जाएगी. Now you can see which option is correct. In this case answer is option B. ये जो हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनका बेनिफिट है कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं और आपका होल सिलेबस है, इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं क्विकली, और ये आपके लिए गुड प्रैक्टिस है यदि आप सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं. नेक्स्ट लेके से MCQ नंबर 5. इसमें देखो आपको डाटा मेंशन किया है. To determine current price of share of MJ Limited, so if put call parity holds true. अब आपने पुट कॉल पैरिटी अप्लाई करनी है और आपने डिटरमिन करना है बट करंट शेयर प्राइस ऑफ MJ Limited. तो किसी गिवन शेयर ऑफ MJ Limited, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया था एक गिवन डेट इक्विटी शेयर ऑफ MJ Limited इज कोटेड एट NSE एंड 3 मंथ कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ 30 रुपीज़. अब इसमें 3 मंथ्स की कॉल आपको अवेलेबल है. उसका प्राइस भी है, लेकिन से प्राइस ऑफ कॉल जिसे 30 रुपीज़ पर एक आपको मेंशन की है 3 मंथ पुट. देखो पुट की PP, सो पुट की अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ ₹5 पर शेयर एंड इट इज गिवन डेट विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹408. और जो दोनों ऑप्शन हैं उनका एक्सरसाइज प्राइस है आपका 408 एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम. So rate of interest is also given R 8% per annum. तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज स्पॉट प्राइस टू डेट S0, ये आपका मिसिंग है. एंड बाय यूजिंग पुट कॉल पैरिटी, तो पुट कॉल पैरिटी का देखो फार्मूला होता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस. तो आपको कॉल की वैल्यू दी है जिसे 30 रुपीज़, इसमें पुट कर देते हैं. पुट का प्राइस है 5 रुपीज़, सपोर्ट प्राइस आपका मिसिंग है, एक्सरसाइज प्राइस है आपका 408. तो प्राइसिंग वैल्यू एट R 8% पर आपका टाइम पीरियड है 3 मंथ से. तो आप R को कैलकुलेट कीजिए, R फॉर 3 मंथ्स. तो दैट विल बी 8% इंटू कर देते हैं इसको 3/12, तो दिस इज कमिंग 2%. तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 1.02. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1 + R जितना भी टाइम पीरियड है. तो नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ S0, सो दिस इज 30 - 5 25 एंड दिस विल गो ऑन दिस साइड 408 divided by 1.02. so this is equal to SO. so let us see how much is SO. 25 plus 4.08 को आप डिवाइड कीजिए 1.02, so this is coming 400. so our spot price should be 425. so now you can see which option is correct. Answer is your option number C. In this lecture we have discussed case scenario based on strategies of options under topic derivatives. फर्दर टॉपिक we will continue in further lectures. वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.